honorable chief guest, respected teachers, and my dear fellows, Assalamu alaikum. Today, the topic of my speech is English medium schools are inevitable for our survival. Mr. President, we are able to understand the importance of English medium schools. Let us explore what is performance of English medium schools. I am astonished to see English medium schools are criticized with a label of a line nursery. On the other hand, some of intellectuals reject English medium schools which in their opinions portray the innocent student to be imitator of foreign master. They also call it as English breeding where British minds grow, hence they are nicknamed as Teddy, James and Romeo. What and what not, but for them I would repent only in these words, that steer which serves and seek for gain, that steer which serves and seek for gain, and follow but for farm, will pay when it begins to rain, and leave thee in the storm. Respectable audience, why should we blame this institution? Are the parents ignorant who send their works to this institution? Are the investors unwise who invest huge capitals in this institution? Are the students not get suitable employment in the country? Are they not suited to get job abroad? I want to ask all of these questions from you. Critics must reform to stop criticizing English medium schools. Very good. Shabash. हमारे चाक गरेबास खेलने वालों, हमारे चाक गरेबास खेलने वालों, हमें बाहर का सूरज सलाम करता है. Today, in this global village, we need in international language. If English will stop functioning in our country, we will be failed to march forward with international community. Summing up my speech, I would say that no system is corrupt. It is man who corrupts it. English medium school is the necessity of time. However, we should promote our own language as many countries follow the policy of bilingual in the world. Thanks. डियर ऑडियंस, इसके बाद एक नज़म जिसका उन्वान है माजूर बच्चे की जिंदा आवाज. इस नज़म को पढ़ने के लिए मैं दावत दूंगा फिरदौस और उनके साथी के वो आए और स्टेज पर अपना नज़म पेश करें. प्लीज कीप साइलेंस. फिरदौस शोर न करें. फिरदौस एंड हिज फेलोज प्लीज. बच्चे हैं हम लालो गोहर, रोशन है मानिंदे कमर, हम बातली का पाहुनर, हरदम बुलंदी पर नजर. मजबूर है कोमत का, मजबूर है कोमत कहा, सादा जुबान शेरी सुखन, हम फूल हम जाने चमन, हम हैं उम्मीदों की किरण, हम जिंदगी का बांगपन. मजबूर हमको मत कहो, मजबूर हमको मत कहो. जिस दिन हमारी मेंटेन देगी जहां को न्यामतें, उस दिन खुलेगी किस्मतें. क्या है हमारी अज़मतें. मजबूर हमको मत कहो, मजबूर हमको मत
खुर्शीद हम महताब हम, खिदमत का रोशन बाब हम, शाइस्ता आदाब हम, अंदर से हैं शादाब हम। माजूर हमको मत कहो, मजबूर हमको मत कहो, हम आसमां पर जाएंगे और कहकशां बन जाएंगे, हम रोशनी फैलाएंगे, दुनिया में इज्जत पाएंगे। माजूर हमको मत कहो, मजबूर हमको मत कहो। वस्सलाम। डियर ऑडियंस, रियली हम उसे मजबूर नहीं कहेंगे, हम उसे मजबूर नहीं कहेंगे। नाउ फॉर Urdu speech on the topic of Pakistan, I will invite Mr. Ishfaq Ahmad of class 8. Please, Ishfaq Ahmad, come on and say something about Pakistan on the topic of Pakistan. Mr. Ishfaq Ahmad. जनाब सदर, मुअज़्ज़िज़ सामीन और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज इस तकरीब में मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई का मौका मिला है उसका उन्वान है यौम पाकिस्तान और उसका मकसद। जनाब सदर, यौम पाकिस्तान का दिन जब भी मनाया जाता है तो दिल में उन कुर्बानियों की याद ताज़ा हो जाती है और इंसान तस्वुर की वादियों में बहुत दूर निकल जाता है। 1857 से लेकर 1947 के तमाम वाक़ियात और हादिसात निगाहों में हकीकत की तरह गूंज जाते हैं, जब हजारों माँ के आंखें अपने बेटों के गम में बेनूर हो गई। बेशुमार बहनों ने अपने भाइयों को सामने कत्ल होते देखा, बेशुमार औरतों ने अपनी असमत बचाने के लिए अपने आप को मौत के सुपर्द करने को तरजीह दी। पाकिस्तान बहुत ही कुर्बानियों और लाखों दुख झेलने के बाद हासिल हुआ है। पाकिस्तान की कदर उन लोगों को है जिनका खून था मेरे पाकिस्तान में काम आया। दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मत में दौड़ा दिए घोड़े हमने। जनाब सदर, ऐसी तकरीबें, ये तकारीब और ये मौके कौमों की जिंदगी की तरक्की की दौड़ में खास अहमियत रखती है। कौमों की तरक्की की दौड़ में ये तकारीब और ये मौके एक हल्का सा ठहराव होती हैं, जहाँ कौमें एक लम्हा के लिए रुकती है और माजी की जदोजहद का जायजा लेती है और नए अज़म का इरादा करते हैं। ऐसे मौकों पर तारीख को याद किया जाता है, जिनके सामने तारीख के ऐवान सुरंग हो जाते हैं, पहाड़ राई बन जाते हैं, आंधियां रुख बदल लेती हैं और दुश्मन गुबार होकर रह जाते हैं। जनाब सदर, अस्सलाम। वाकई पाकिस्तान बड़ी मेहनतों के बाद मिला है। नाउ फॉर नेशनल सॉन्ग I will invite Mr. Haris class 3rd. Mr. Haris class 3rd, come on.